Hello, dear students. Today we are continuing our measures of central tendency in statistics. Let us continue with mode. Mode is another important measure of central tendency of a statistical series. It is the value which occurs most frequently in the series. That is, modal value has the highest frequency in the series. For example, if out of 100 students in a class, 70 students record their age as 15 years, the modal age of the students would be 15 years. The word mode is derived from French word la mode, which means a thing in vogue of fashion. In statistics, it is generally represented by the letter Z. Definition: according to Kenny, the value of the variable which occurs most frequently in a distribution is called the mode. बहुत क्लियर है कि जिस सीरीज में जो भी वैल्यू सबसे अधिक बार आएगी वह मोड कहलाएगी, लेकिन यह हमें तय करना पड़ता है विभिन्न तरीक़ों से कि कौन सी आइटम या कौन सी वैल्यू सीरीज में सबसे अधिक बार आ रही है या मानी जा रही है. Mode is calculated differently for different type of series. Calculation of mode in individual series. There are two ways of calculating mode in individual series: by inspection, by converting individual series into discrete frequencies. Number 1, mode of inspection. This method involves just an inspection of the series. One is to simply identify the value that occurs most frequently in the series. Such a value is called mode. एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल में दिया हुआ है इलिस्ट्रेशन में, एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज रिपोर्टेड बिलो. फाइंड द मॉडल एज. एज दिया हुआ है 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22, 22. हमें सबसे पहले क्या करना होगा? व्हाट वी हैव टू डू, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर. एज सीरीज को हमने अरेंज कर लिया. एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज शोज दैट 22 ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज. 22 को हम काउंट करते हैं, 22 सबसे अधिक बार आया है. हेंस जेड, विच इज़ द सिंबल ऑफ मोड, इज इक्वल टू 22. By converting individual series into discrete frequency series. When the number of items in a series is very large, inspection method of finding out the mode becomes very difficult. If not possible, in such cases, individual series are first converted into discrete frequency series or frequencies array. The mode is then identified as the value corresponding to which there is highest frequency. You can understand it well by the illustration. Look at the example. Illustration. Table below present the death rate of population across different countries. Find the mode. यहाँ पे हमें डेथ रेट दी हुई है पर 1000. अब हमें इसको देखकर तो कुछ अनुमान लग नहीं रहा कि कौन सा मॉडल क्लास या मोड होना चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी कन्वर्ट द सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर एज अंडर. अब हमने सबसे लोएस्ट नंबर लिखा जो कि यहाँ पर ऑब्वियसली 10.4 है. 10.4 ऑकर्स 1, तो फ्रीक्वेंसी लिख दिया 1. फिर 10.5 को हमने देखा, 10.5 ऑल्सो कम्स 1. 10.6 काउंट कर लेते हैं कितने बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स. 10.7 को काउंट करते हैं 2 टाइम्स. 10.9 को काउंट करते हैं 2 टाइम्स. 11.1 को काउंट करते हैं, ये भी 2 टाइम्स है. और 11.3 1 टाइम है. 10.6
is the value with highest frequency 5. Hence, mode Z is equal to 10.6. This is our answer. Calculation of mode in discrete series or frequency array. There are two methods for calculation of mode in discrete frequency series: inspection method and grouping method, as we earlier see it. As in case of individual series, inspection method is sometimes used for calculation of mode in discrete frequency series as well. An inspection of the series would show the mode or the value that has the highest frequency in series, provided the series are regular and homogeneous. ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि सीरीज रेगुलर होनी चाहिए और होमोजीनियस होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, समानांतर दिखनी चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए, उनमें कुछ सिमेट्री होनी चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 110, 120, 130, 140, 150, 160. Number of persons 2, 4, 8, 10, 5, 4. Solution. A glance at the series reveals that 140 commands the highest frequency of 10 in the series. 140 के नीचे 10 लिखा हुआ है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और वो क्लियरली किसी से बहुत क्लोज भी नहीं है, इसीलिए हैंस 140 इज द मोड ऑफ द सीरीज। हम ग्रुपिंग मेथड की बात करते हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्पेक्शन मेथड पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ रेगुलर एंड होमोजेनिटी इन सीरीज। रेगुलर एंड होमोजेनिटी इन सीरीज, इसे ध्यान दीजिएगा। हाउएवर द सीरीज में समटाइम्स नॉट बी रेगुलर और होमोजीनियस। कई बार सीरीज रेगुलर भी नहीं होती हैं और होमोजीनियस भी नहीं होती हैं। मोर देन वन वैल्यू में कमांड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कई बार ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले 2 या 3 वैल्यूज हों, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इन द सीरीज। इन सच केसेस ग्रुपिंग मेथड of calculation of mode is used. The method involves the construction of grouping table and analysis table. The illustration below will explain the calculation of mode using the grouping method. आप मुझे यहाँ पर बताइए कि ग्रुपिंग मेथड का यूज हम कब करेंगे। आप आंसर दीजिए, फिर हम इस इलस्ट्रेशन को समझेंगे कि ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल कब करते हैं और यहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हमें साइज़ दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फ्रीक्वेंसी दी है 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1। अब ये जो हम होमोजेनिटी और रेगुलरिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सीरीज़ में कुछ होमोजेनिटी और रेगुलरिटी फ्रीक्वेंसी में दिख नहीं रही है। 2 फ्रीक्वेंसीज़ हैं 16 और 17 जो बहुत क्लोज हैं, फिर उससे क्लोज 14 भी है, 12 भी है। तो यहाँ पर ये हम बहुत क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि कौन सा मीडियन मोड होगा, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ऐसे केसेस में हम ग्रुपिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रुपिंग टेबल फॉर एस्टिमेशन मोड। इसमें क्या होता है वो यहाँ के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो देखेंगे, इसमें हमने 6 कॉलम्स बनाए हैं। सबसे पहला वाला जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी, उसमें हमने क्वेश्चन में दी गई फ्रीक्वेंसी को लिख लिया है। दूसरे कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी 1 और 2 का टोटल लिखते हैं। तीसरे कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी 1 को छोड़ देते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 और 3 का टोटल लिखते हैं। फिर अगले कॉलम में हमने 1, 2, 3 तीनों को हम ले लेते हैं। उसके नेक्स्ट कॉलम यानी 5th कॉलम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं। और 6th वाले कॉलम में हम
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्रीक्वेंसीज का टोटल लेते हैं। ये मेथड है ग्रुपिंग मेथड, ये आपको समझ के याद रखना होगा। पहले मैं 1 2, फिर 2 3, फिर 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, ये आपको ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि हम पहले 2 2 के ग्रुप 2 बार बनाएंगे और 3 3 के ग्रुप 3 बार बनाएंगे। 2 2 के पहले ग्रुप में एक भी मेंबर को नहीं छोड़ेंगे, फर्स्ट से काउंट करेंगे। सेकंड वाले में जब दूसरे का ग्रुप बनाएंगे तो फर्स्ट मेंबर को छोड़ देंगे, सेकंड और थर्ड को ले लेंगे। फिर हम थर्ड का ग्रुप बनाएंगे 3 3 का, उसमें हम 1 2 3 ले लेंगे। फिर अगले बार में हम 1 वाले को छोड़ देंगे, 2 3 4 ले लेंगे। फिर अगले बार में हम 1 2 को छोड़ देंगे, 3 4 5 को ले लेंगे। ये सीक्वेंस आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको कुछ भी अटपटा सा नहीं लगेगा, नया नहीं लगेगा और ईजी लगने लगेगा। समझते हैं अब हम अपनी बात को। तो यहाँ पर हमने ये साइज़ लिख लिए जो क्वेश्चन में गिवन थे, जो फ्रीक्वेंसीज थी वो गिवन लिख लिया। अब फर्स्ट वाला कॉलम जो था वो क्वेश्चन से दी गई फ्रीक्वेंसी का था। सेकंड वाले कॉलम में हमें 1 और 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखना है। 3 + 8 11 आ गया। फिर अगले 2 को ऐड करना है, 10 + 12 22 आ गया। फिर अगले 2 को ऐड करना है, 16 और 14 30 आ जाएंगे। फिर अगले 2 को ऐड करेंगे, 10 और 8 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम करते जाएंगे। अब मैं सेकंड कॉलम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड कॉलम का मतलब यहाँ पर है इस वाले कॉलम से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट को छोड़ दे रहे हैं। सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड में है 8 और थर्ड में है 10, इन दोनों को ऐड कर लिया 18। फिर अगले 2 को ऐड कर लिया, फिर अगले 2 को ऐड कर लिया, फिर अगले 2 को ऐड कर लिया, लाइकवाइज। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट यानी फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम से हमारा मतलब है 1 2 3। 1 2 3 अब हम लेंगे। 1 2 3 में पहली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3, दूसरी है 8, तीसरी है 10। इनको हमने ऐड कर दिया, 21 आ गया। फिर हम नेक्स्ट 3 का ग्रुप लेंगे, फिर नेक्स्ट 3 का ग्रुप लेंगे, फिर नेक्स्ट 3 का ग्रुप लेंगे। अगर 3 3 के ग्रुप नहीं बनेंगे तो जो बच जाएंगे उनको छोड़ देंगे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम चल रहे हैं तो हमारे पास है फिफ्थ कॉलम, जिसमें हमें फर्स्ट को छोड़ देना है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ को लेना है। सेकंड में है 8, फिर है 10, फिर है 12। इन तीनों को हमने ले लिया, 8 10 12, जो कि 30 आ गया। और फिर अगले 3 को ले लिया, फिर अगले 3 को ले लिया। इस तरह से ये हमारा फिफ्थ कॉलम कंप्लीट हुआ। अब हम आ रहे हैं सिक्स कॉलम में। सिक्स कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड से लेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 छूट जाएगा, फिर 2 3 4, फिर 2 छूट जाएगा, 3 4 5। माने 2 बार आपको 2 2 की ग्रुपिंग करना है। एक बार आप फर्स्ट से शुरू करेंगे, एक बार सेकंड से। फिर 3 बार आपको 3 3 का ग्रुपिंग करना है। एक बार आप 1 2 3 लेंगे, अगली बार 1 को छोड़ देंगे, 2 3 4 लेंगे, फिर अगली बार 2 को भी छोड़ देंगे, 3 4 5 लेंगे। तो 2 2 के 2 ग्रुप और 3 3 के 3 ग्रुप ऐसे अपन बनाते हैं। और पहला कॉलम हमारे क्वेश्चन की दी गई फ्रीक्वेंसीज का होता है। इस तरह से ये सारी फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, हम केवल उन फ्रीक्वेंसीज को राउंड अप कर देते हैं, इन सर्कल कर देते हैं या बोल्ड कर देते हैं जो हाईएस्ट हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉलम में 17 हाईएस्ट है, सेकंड में हमारे पास 30 है, और थर्ड में हमारे पास 28 है, यहाँ 42 है, यहाँ पर 40 है। इन सबको हमने इन सर्कल कर दिया। चेक द फॉलोइंग टेबल 1 and 2 subsequent details. There are 6 columns in the table on the frequency. Its grouping as table 1. Column 1 में हमको क्या करना है, the frequencies as given in the question are noted against the column 1. कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में दी गई फ्रीक्वेंसीज को नोट करते हैं। कॉलम 2 में हम क्या करते हैं, कॉलम 2 में इन द frequencies are grouped in twos beginning with the first item. फर्स्ट आइटम से शुरू करके हम 2 2 के ग्रुप बनाते हैं। कॉलम 3 में क्या करते हैं, द फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन टूज बिगिनिंग विथ सेकेंड आइटम।
कॉलम 4 में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन 3 बिगिनिंग विथ फर्स्ट आइटम। जब हम 3 को शुरू करेंगे तो भी हम 1 2 3 से शुरू करेंगे, फिर सेकंड टाइम 2 3 4, फिर नेक्स्ट टाइम 2 को भी छोड़ देंगे, 3 4 5। The frequencies are grouped in threes beginning with second item, and the sixth column the frequencies are grouped into threes beginning with the third item। अब हमको एनालिसिस टेबल बनाना है। हमने क्या कर लिया था, वहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को अंडरलाइन कर लिया था या इन सर्किल कर लिया था या बोल्ड कर लिया था, तो हमने यहाँ पर सर्किल बनाया हुआ, रेड सर्किल बनाया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस ग्रुप में आ रही थी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले वाले कॉलम में आ रही थी 10, दूसरे वाले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 6 और 7 के सामने। 6 और 7 के सामने हम एक टैली मार्क्स या राइट का टिक लगा लेंगे। फिर तीसरे वाले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 28 पर, और वो 28 आ रही है, यहाँ आपने देखा कि वो 5 और 6 में आ रही है। फिर उसी तरह से यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 42 है। 42 किस कॉलम में आ रही है, 5 6 7 पर आ रही है। फिर यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 आ रही है। 40 यानी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ में 40 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ और उसके बाद 1 2 3, इसमें आगे 6 7 8 के सामने हम टिक लगा देंगे। और फिर उसी तरह से लास्टली हमारे पास आया था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई थी 3 4 5 में, तो 3 4 5 हमारे पास जो आइटम है, आइटम वाली सीरीज़ में हम देख लेते हैं। 3 4 5 है हमारे पास, 3 में 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इनके सबके सामने हम राइट के निशान लगा लेंगे या जो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे कि कितने राइट के निशान आए। 4 में तो 1 आया, 5 में कितने आए हैं तो 3 आया, 6 में कितने आए हैं तो 5 आया, 7 में कितने आए हैं तो 3 आया, 8 में कितने राइट आए हैं 1, 9 में एक भी नहीं आया, 10 में 1 आया, 11 में एक भी नहीं आया, 12 में नहीं आया, 13 में नहीं आया। तो अब हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्वियसली आपको दिख रही होगी यहाँ टेबल में। यहाँ आपको टेबल में ऑब्वियसली दिख रही है, ये जो 5 है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो 5 है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यही हमारा इसके सामने वाली जो वैल्यू है, अर्थात वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 6। ये हमारा मोड कहलाएगा। ठीक है।